example, in the 10 Commandments, 10 हुक्मों में God said, "Do not take my name in vain," उसके नाम को आप ऐसे ही ना लें, because His name is very powerful. क्योंकि उसका नाम सामर्थ से भरा हुआ है। When we use that name, something happens in this atmosphere. जब हम उसके नाम को लेते हैं तो इस एटमॉस्फेयर में, इस जगह में, इस माहौल में कुछ ना कुछ होता है। Bible says the name of the Lord is like a strong tower. खुदावंद का नाम जो है एक बुर्ज के समान है। बुर्ज के समान है, Strong tower. एक बड़े किले के समान। किले के समान है, Where the righteous can run and take shelter in that. जहाँ पे जाके राजपास जाके पनाह पाए, So that you don't have to climb somewhere in the mountain. ताकि किसी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत ना पड़े। You don't have to travel somewhere to have some kind of a religious holy pilgrimage. कहीं धर्मी तरीके से कहीं दूर जाना पड़े हमें। The moment you use the name of Lord Jesus Christ, जिस वक्त आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, you place or position yourself in a big strong tower. आप एक बड़े किले पे अपने आप को पाए जाते हैं। You are elevated in the higher place spiritually. आप ऊंची जगहों पे ले आए जाते हैं रूहानी तरीके से। God surrounds you with His presence. और खुदावंद आपको घेर लेता है। God's presence comes upon you. और उसकी मौजूदगी हमारे ऊपर होती है। That's why in the Bible says, "Those who call upon the name of the Lord shall be saved." इसलिए कलाम में लिखा है, जो उसके नाम को पुकारते हैं वो जरूरी बचाए जाएंगे। They will be delivered. वो उनको छुटकारा मिलेगा। They will be set free. उनको छुटकारा मिलेगा। They will be healed. और उनको शिफा मिलेगी। If we meaningfully take the name of the Lord. अगर किसी मतलब के साथ, मकसद के साथ उसका नाम लें। Book of Malachi chapter 1 verse 14 says that His name is powerful. मलाकी पहला बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि उसके नाम में सामर्थ है, सामर्थी नाम है। His name should be glorified among the nations and people. दुनिया के हर एक कोने में उसके नाम को जला दिया जाएगा। Jesus, while He was teaching to His disciples, यीशु मसीह जब शागिर्दों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, He was teaching about prayer. वो उनको दुआ के बारे में बता रहे थे। And the first thing He uttered when He talked about prayer, और पहली बार भी उन्होंने दुआ के बारे में बताया। He told His disciples, when you pray, say, "Father, hallowed be Thy name." उसने बताया उन्हें कि इस तरीके से दुआ करा करो कि आए बाप तेरा नाम पाक माना जाए। The first thing you start honoring and lifting up the name of the Lord. पहले दुआ में हमें उसके नाम को जला देना, उसके नाम को ऊंचा करना है। Because the name of the Lord will put you in a higher place. इसलिए उसका नाम आपको ऊंची जगह पे रखेगा। Name of the Lord will put you in such a place where you can be connected to God. वो आपको इस जगह, ऐसी जगह पे लेके आएगा जहाँ पे आपका संबंध खुदावंद के साथ होगा। Not any name will connect you to God. कोई ऐसा नाम इस दुनिया पे नहीं है जो खुदा के साथ आपको Only जोड़े। the name that God Himself gives us to be connected to Him. सिर्फ वो नाम जो खुदा ने खुद हमें दिया है, वही नाम हमें खुदा के साथ जोड़ता है। There are three things that make somebody's name great. तीन बातें हैं जो एक इंसान के नाम को महत्वपूर्ण बनाती हैं। Three things that make somebody's name great. तीन बातें हैं जो किसी के नाम को बड़ा करती हैं, ऊंचा करती हैं। First thing that brings greatness to somebody's name, पहली बात, that is the name they inherit. नाम जो उन्हें दिए जाता है, जो वो पाते हैं नाम किसी से, अपने Some बाप से। people are inherited. They inherit a great name. कई लोगों को उनका नाम दिया जाता है, वो अपने माँ बाप से पाते हैं, अपने दादाओं से पाते हैं। How? कैसे? Like a royal people. जो रॉयल लोग जो होते हैं, ऊंचे खानदान के लोग। The son of king, when he is born, he is prince. जो राजा का बेटा होता है, He is called prince. और उसको प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता The है। day he is born, he is called as prince. जैसे ही जिस दिन वो जन्म लेता है, उसको राजकुमार कहा जाता है। That name, the title, he inherited by birth. वो पैदाइश से ही उसे वो जो टाइटल है वो दिया जाता है। The daughter of a king is called princess the day she is born. और जो बेटी होती है राजा की, उसको राजकुमारी कहा जाता है जिस दिन से वो पैदा होती है। She hasn't born any war, she hasn't done anything great in her life or his life. उसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया होता, लेकिन उन्हें वो नाम, वो टाइटल दिया जाता है। They is born in this world. वो अभी पैदा हुए हैं, But they are given that name because of their father, because of they're born in a certain वो family. टाइटल ये नाम दिया जाता है उनके माँ बाप की वजह से। Book of Hebrew chapter 1. इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब। Let's turn that we may read some of the important verses from the Holy Bible.
आए कलाम में से कुछ जरूरी और खास आयतें पढ़ें। Book of Hebrews chapter 1, इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब verse 3 through 6. 3 से लेके 6 तक। Let's read those 3 verses. वो उसके जलाल का वास्तव उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। About Jesus Christ, it is written that यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा गया है He is the radiance of God's glory, खुदावन की जलाल का नक्श है, exact representation of God. खूबहू बिल्कुल उसी की तरह है। You know, there are so many good people who came in this world, इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग आए, but they are not exact representation of God. वो बिल्कुल खुदा की तरह नहीं है बिल्कुल भी। They spoke about God. वो खुदा के बारे में उन्होंने बात की, They were good people. अच्छे लोग थे, They said good stuff in this world. उन्होंने दुनिया में अच्छी अच्छी बातें बताई, They did good works in this world. उन्होंने दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए, They fed poor. उन्होंने गरीबों को खिलाया, They did so many good work in the society. और इस दुनिया में के लोगों के लिए उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम They किए, were great because they were good in their works. और इन्हीं कामों की वजह से वो बड़े माने गए। But they could not exactly represent God. लेकिन वो खुदा को नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, दिखा पाए। They were good people. अच्छे लोग थे, Some of them were called saints. कई लोगों को संत कहा गया, Some were prophets. कई नबी थे, Some were priests. कई याजक थे, Some were kings. कई राजा थे, Some were good leaders. कई अच्छे लीडर थे, They were good people. अच्छे लोग थे, But they were not exact just like God. लेकिन वो बिल्कुल खुदावंत की तरह नहीं थे। But about Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के बारे it में is written in the Holy Bible यहाँ पे पाक कलाम में लिखा गया है that He is the exact representation कि of वो बिल्कुल ही खुदावंत खुदा की तरह है। radiance of God's glory. जो खुदावंत का जलाल है उसका बिल्कुल नक्श है। The glory of God in human form. खुदावंत का जलाल जो है वो आदमी के रूप में दिखाई गया है, And He holds everything in His hand by the power of His word. और अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसके हाथों में है। And Bible says when He covered everything, और कलाम में लिखा है जब उसने सब कुछ ढक दिया, when He did everything that He came to do in this world, जब उसने सारा काम कर लिया जो उसे करना था इस दुनिया में, when He taken care of the sins of this world, जब दुनिया के गुनाहों का उसने सब कुछ देख लिया, He died and He rose again, वो मरा और फिर जिंदा हुआ, and then He sat at the right hand of और God. खुदा के सीधे हाथ पे बैठा है। Amen. That's one He makes His name higher than any other name. यही नाम, यही बात है जो उसके नाम को इतनी महिमा दी जाती है। Other people came, और लोग आए, they died, वो मर गए, their tombs are still in this world. उनकी कब्रें अभी भी इस दुनिया में हैं। They could not go back to the place where God's right hand is. वो वापस खुदा के पास नहीं जा पाए जहाँ खुदावंत का सीधा हाथ है। That's Bible says because Jesus did so. इसलिए कलाम में लिखा है क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया। Verse 4, somebody read verse 4. चौथी आयत कोई पढ़े? Chapter 1, Hebrew verse 4. इब्रानियों पहला उसकी चौथी आयत। So He became much superior to the angels. और स्वर्गदूतों ने उतना ही उत्तम ठहरा स्वर्गदूतों ने से हाँ उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम उसको एक बड़ा पद का वारिस मिला। He inherited a name from God. खुदा से उसको एक ऊंचा पद मिला है। He received a title from on high. उसको ऊपर से ऊंचा पद मिला है। Nobody selected him to be a leader. उसे किसी ने एक लीडर की तरह नहीं He चुना। himself did not declare that I'm a leader of this community or this religion. उसने अपने आप खुद ऐसा नहीं कहा। God gave him that name. खुदा ने खुद अपने आप He inherited by birth that name. उसे जन्म से ही ये नाम दिया गया। In chapter 2 of Philippians we read that. फिलिपियों उसका दूसरा बाब। Let's read from book of letter of Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. फिलिपियों का उसका दूसरा बाब। Second reason how is somebody get a great name. दूसरी बात जिसकी वजह से किसी को ऊंचा स्थान दिया जाता है, नाम दिया जाता है। By achievements. जो जिंदगी में उन्हें जो पाया है। By doing good works.
जो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे काम उन्होंने किए हों। You see some athletes, they never get medal because they were born in a certain family. आपने देखा जो दौड़ भागते हैं उन्हें ऐसे ही एक मेडल नहीं दिया जाता। They work hard. उन्हें मेहनत करनी They पड़ती take है। care of their body. वो अपने जिस्म अपने बदन का ध्यान And they रखते हैं dedicate their life to do certain kind of things. और अपनी जिंदगी किसी एक काम के लिए लगा देते हैं। And then when they do that, जब वो ऐसा करते हैं they participate in the competition. वो दौड़ में हिस्सा लेते हैं And when they win the race, और फिर वो जीतते हैं, and then they get a medal, फिर उन्हें एक मेडल दिया जाता then है they get a trophy, या ट्रॉफी दी जाती है, then they get a reward. रिवॉर्ड दिया जाता है। It could be a scientist, or a scholar, or it could be a athlete, or a good sportsman. कोई भी हो सकता है, एक साइंटिस्ट हो सकता है या दौड़ने वाला हो सकता है या स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। So they receive that great reward. तो उन्हें एक बड़ा इनाम दिया जाता है। So their name becomes fame. इस वजह से उनका नाम They दिया है, मशहूर become होता है। popular. They become, मशहूर हो जाते हैं वो इस वजह से। and how did they receive that? कैसे हुआ? Because of their achievements, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं जो पाया है because of their hard work, अपनी मेहनत की वजह से, because of their dedication, जो पूरा दिल से जो because काम of करते their हैं, commitment, उनका जो कमिटमेंट है उसमें, because of their higher goal, उनका जो गोल है, जो एम है, because of their target. They had a target in their life. जो निशाना है जिंदगी में, उसकी वजह से। Book of Philippians chapter 2 verse 9 through 11 says, फिलिपियों का उसका दूसरा बाब 9वीं आयत से, कोई भी जन पढ़िएगा अपनी जल्दी से। इस कारण परमेश्वर ने भी उस ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ इस कारण खुदावंद परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचा करा ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। क्यों दिया वो नाम? ऊपर की आयतें पढ़े 6 आयत से लेकर verse 6 onward read it. छठी आयत ਕਿ से, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। हाँ, मैं सिंपलीफाई करता हूँ। क्योंकि वह परमेश्वर था, परमेश्वर की बिल्कुल हूबहू शक्ल थी, पर फिर भी उसने परमेश्वर जैसे इस दुनिया में रहने के लिए ना सोचा, बल्कि आम इंसान की तरह रहा। आगे ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ अपने आप को सखना कर, अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। अवतार ले लिया, इस दुनिया के बीच मनुष्य जैसे रहने लग गया। आगे ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। वो है बड़ा वो ऐसे नहीं, बिल्कुल आम सिंपल साधारण एक इंसान की तरह अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करा। पैदा भी ऐसा हुआ जैसे आम इंसान पैदा होते हैं, ऐसे ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुए, ऑर्डिनरी लोगों की तरह दुख मुसीबत सहा, बिल्कुल सब कुछ उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, emptied himself. He didn't use his power, he didn't use his glorious thing, he didn't use any of his power that a God has to use. उसने अपने आप को बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह बना दिया, एक खुदा होते हुए। Then what happened? क्या हुआ? ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। He became obedient, he died, and he died on the cross just like any human being will die. He just died like a common human person. और एक आम इंसान की तरह वो भी सूली पे चढ़ा। At the time of his death, he could call upon the legions of angels and he can, strike at every human being. वो चाहता तो सूली पे चाहता तो वो फरिश्तों की फौज को बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। The moment people were mistreating him, he could say, die, they could die right away. लोग जब उसे मार रहे थे, कूट रहे थे, अगर वो चाहता था तो वो एक शब्द बोलता और सब कुछ खत्म हो सकता था। If he could stop a big storm and he could stop any other thing, he could stop anything that was coming against him. अगर वो तूफान को रोक सकता था तो क्यों ना ऐसा कर सकता था, जरूर करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He did not do any of those things. ऐसा उसने कुछ नहीं किया। Simply took all kind of shame, rejection, and every kind of disrespect from people. और सब कुछ अपने ऊपर ले लिया उसने। And then what happened? क्या हुआ उसके बाद? ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। इसलिए परमेश्वर ने उसे अति ऊंचा किया। Therefore God exalted him to the highest place. कितना ऊंचा कर दिया? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। Oh, God gave him such a name, the name above every name.
ऐसा नाम दिया है जो सबसे ऊंचा है। उसने गाली सुन के, बाइबल में लिखा, गाली नहीं दी किसी को। He never cursed anybody. जब लोग उनको मारते थे उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। When people were hitting him, he never lifted up his उसने hand. किसी से बदला नहीं लिया। He didn't take any revenge. जब लोग उसके बारे में बुरा कहते थे उसने उसके बदले में उनसे बुरा नहीं कहा। When people used to talk bad about him, he used to bless them. हर बात में उसने अपने आप को खुदावंद प्रूव करा। In everything he proved to be God. पहले पतरस की पत्री में लिखा है, पढ़ने का ना इसमें लिखा, उसके मुंह में से कभी भी अनुचित बात नहीं निकली। In 1 Peter you can read, it says that never ever did Jesus Christ said anything unrighteous or ungodly. पंजाबी ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛਲ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। Never spoke a word of unrighteousness or ungodly There words. was nothing coerce unrighteous came from his mouth. उसके मुंह से कोई भी गलत बात खुदा के खिलाफ लोगों के खिलाफ नहीं निकली। When he was on the cross, जब वो क्रूस पे था, people were talking bad about him. लोग उसके बारे में बुरा कह रहे थे। They were not asking sorry. वो उससे माफी नहीं मांग रहे They थे। were not asking, oh, we are sorry, we apologize with वो उससे you. माफी नहीं मांग रहे थे। But still he said, लेकिन फिर भी उसने कहा, Father, forgive them. ऐ बाप उन्हें माफ कर, People are sick. उनको आशीष दे, Father, do not count this sin against them. इनके खिलाफ ये गुनाह मत देख। When he was dying, he was giving life to a thief that was hanging beside him. जब यीशु मसीह मर रहे थे तो वो एक चोर को जो सलीब पे चढ़ा हुआ था उसको जिंदगी दी उन्होंने। मरते वक्त भी जिंदगी दे रहे हैं, ऐसा कोई खुदावंद हो नहीं सकता। When he was dying, he was given life to a thief. जब लोग माफी नहीं मांग रहे, फिर भी उनको माफ किया जा रहा है। People are not even asking for forgiveness, and he's forgiving them. सलीब पर चढ़ रहे हैं, दुख सह रहे हैं, उनके हाथों पांव में कीड़े हैं, सिर पर कांटों का ताज है, साइड में भाला मारा हुआ है, तो फिर भी अपने शागिर्द को कहते हैं, ये मेरी मदर है, इसका टेक केयर तुम करना। Even after going through all the trouble and all the pain, he's telling his disciple that take care of his mother. He was grooming, but Bible says honor your father and mother. वो हमें सिखा रहे थे कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। हर बात में उसने हर एक बाइबल की आयत को पूरा करा। In everything he said, he fulfilled every word of किसी God. से बदला नहीं लेना। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि उसने ये सब किया, परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम। That's why the Bible says God gave him the name that is above all names. दूसरी बात है कैसे किसी को महान नाम मिलता है, अचीवमेंट से। The second thing, by their works, by their hard work. थर्ड थिंग, कैसे किसी को ऊंचा नाम मिलता है। तीसरी बात, किस तरीके से लोगों का नाम ऊंचा होता है, महान होता है, मशहूर होता है। It is conferred on them. उनको दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। It is given to them. It is presented to them. ऑनर की वजह से, Because of honor, सत्कार सम्मान की वजह से, to honor them, to lift them up. उनकी महानता की वजह से Because of their greatness. दुनिया भर में लोगों को कई पुरस्कार मिलते हैं, नोबेल प्राइज मिलते हैं। All over the world, people get Nobel Prize. ना इसलिए नहीं कि उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया है, Not because they participated in any kind of competition. इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत से लोगों को हराकर जीत प्राप्त करी है, Not because they have defeated many people in some sort of और वो competition. अपने आप में ही वो पुरस्कार के योग्य थे। They, within themselves, they were eligible for the उनकी prize. पर्सनालिटी, उनकी ब्रेवरी, उनकी खुद की शख्सियत की वजह से लोगों ने कहा, हाँ, इनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, इनको सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये महान लोग हैं। Because of their personality, because of their nature, they were given the prize. मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया। For example, Mother Teresa. ये इसलिए नहीं कि वो कंपटीशन में भाग ले रही थी। Not because she participated in any kind of She did competition. so much charitable work in Calcutta and India and all over the world. दुनिया के सब जगह में, खासकर कलकत्ता में, भारत में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। जब वो बहुत एक छोटी नन, एक छोटी लड़की के रूप में कलकत्ता में आई थी, उसने इसलिए लोगों के बीच में, कोड़ियों के बीच में, बीमारों के बीच में उसने अस्पताल खोलकर लोगों को सारे काम करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कर रही थी कि उसको एक दिन नोबेल प्राइज मिलेगा। When she was a little young girl, she went to India and she helped all these poor people, sick people, not to get any prize. She did it out of जब her लोग heart. कोड़ियों को फेंक देते थे, निकाल देते थे, उनके बच्चों को उठाकर उनके घाव धोती थी, उनको खाना खिलाती थी, लोगों
उनके लिए सारा बंदोबस्त करती थी। ये नहीं सोच रही थी वो कि People उसको were- एक दिन नोबेल प्राइज मिलेगा। People who were sick and their kids were thrown out, and she used to clean them. And she did everything not because so that she can get some kind of prize. बाइबल ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद, अगर तुम मेरे नाम के कारण किसी को एक ठंडा पानी का गिलास भी पिलाओगे और उसका रिवार्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। And Jesus Christ said, feed the people, give them water. If you do that in my name, you will be rewarded. इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोगों को रिवार्ड दिया जाता है क्योंकि वो अपने आप में रिवार्ड के लायक और काबिल होते हैं। Because of this, because of their personality, because of their nature, for the good things that they do, they get rewarded, they get a Nobel Prize. स्पिरिचुअली प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, अफसियों की किताब पहला अध्याय, बुक ऑफ लेटर ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, verse 19 on, let's read that part. इस्सियों का खत, उसका पहला बाब 9 में है। कोई भी जन बुलंद आवाज में पढ़िएगा। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਚਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਤ ਬੜਾਪਨ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, आगे पढ़े। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਾਲਿਆ। Right, God raised Jesus up from the dead and had him seated at the right hand of God himself. खुदावन ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया और वो यीशु मसीह खुदावन के सीधे हाथ पे बैठे हैं। आगे पढ़ते जाइए। और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक तरफ से बहुत बुलंद किया, तो न सिर्फ जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी किया जाएगा। और थैंक यू, कितना उसको ऊंचा करा। पढ़िए भी कोई, देखो लिखा है, He is above all rule, authority, power, dominion, every title that can be given, not only in this present age but also in the age to come. सब नामों में, सब हुकूमतों में उसका नाम सबसे ऊंचा पाया गया है। That's why the name of Jesus is so great. इसी वजह से यीशु मसीह का नाम बहुत अच्छा है। That's why the name of Jesus delivered people and set them free. उसके नाम से लोगों को छुटकारा मिलता है और जिंदगी मिलती है। He told that whenever you ask from the Father in my name, the Father shall do for you. यीशु मसीह ने कहा, जो भी बाप से मांगोगे मेरे नाम से तुम्हें दिया जाएगा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, खुदा यीशु कहते हैं मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। When 2 or 3 are gathered in His name, there He should be. देखो उसके नाम में कितनी सामर्थ है। जब उसके नाम से 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी हुजूरी के साथ वहाँ पर मौजूद हो जाता है। See how powerful His name is. Where 3 people are gathered, He is present there. Acts chapter 4 verse 12 में लिखा हुआ है, until the heaven upon this earth there's no other name that has been given by whom we can be saved. हम आगे किताब में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है आसमान के नीचे हमें कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह जैसा नाम, जिस नाम के वसीला से हमें निजात की मुक्ति मिलती है। Through His name we get delivered and we have eternal life. John chapter 14 verse 13 and 14 को ध्यान से पढ़िएगा। यूहन्ना का चलिए उस आयत को पढ़ें क्योंकि हमें समझ लगना चाहिए कि हम कैसे खुदावंद के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। John chapter 14 verse 13 and 14 कोई भी दे। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। that's what I will do। हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिताजी में पाऊँ। कि through Son Father may be glorified। हाँ, आगे बढ़ते जाएं। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मैं उसे करूँगा। Right, see, this is how the powerful name of Jesus is। देखें यीशु मसीह का नाम कितना सामर्थ्य है। उसके नाम से मांगने से ही पिता करता है। By His name God gives us everything. हम रिलीजन तो कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, We can follow any religion. किसी भी धर्म में मजहब में हम रह सकते हैं, We can be found in any पर religion. अगर ये हम बात सोचे कि खुदावन हमारी आवाज सुने, But if we think that God is listening to us, तो उसने सुनना तो सिर्फ एक ही नाम से आवाज को सुनना है, वो यीशु के नाम से। just remember He will only listen to us by the name of Jesus Christ. इसी के पास 16 अध्याय यूहन्ना की इंजील और उसकी 23 और 24 आयत में भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं अपने शिगिर्दों को। 16 अध्याय 23 और 24 आयत कोई भी जन पढ़ दीजिए। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। राइट, देखो जो कुछ पिता से बाप से
God Fathership तुम मांगोगे मेरे नाम से, He will do it. हाँ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। मांगो तुम्हें दिया जाएगा और इसी से तुम्हारा आनंद पूरा होगा। You should ask and you will be given, and your peace will be fulfilled. कई बार हम ऐसे मांगते रहते हैं खुदावन से, Sometimes we just keep asking unnecessarily. और कई बार हम मांगते हैं पर हमें कुछ ईमान नहीं होता है और ट्रस्ट नहीं होता है कि वाकई हमें मिलेगा। And sometimes when we ask, we don't have faith or belief. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए अभी तक आपने कुछ मांगा ही नहीं है। That's why Jesus Christ says, until now you haven't asked anything. Ask by faith. ईमान के साथ मांगो। In my name to the Father. मेरे नाम से बाप से मांगो। See, the prayer has to be addressed to the Father and should be in the name of Jesus Christ. लेकिन दुआ जो है वो बाप से मांगनी है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से। Because God has given that name for us to be called upon. क्योंकि ये खुदावन जो आसमानी बाप है उसने हमें नाम दिया ताकि हम उस नाम के द्वारा मांगे। हम ऐसे ही खुदा के पास नहीं जा सकते क्योंकि हम गुनाहगार हैं, इंसान हैं, गुनाह गलतियां इंसान से होती है। हम लोग कहते रहते हैं कि इंसान गलतियों का क्या पुतला है, इसलिए हम डायरेक्ट खुदा के पास ऐसे नहीं जा सकते हैं। Because of sin, we cannot go directly to God. We have to go through Jesus Christ. Because of the mistakes and shortcomings that comes on our way on this earth, so we cannot just go to God just like दुनिया में जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो गुनाह हम करते हैं, उनके वजह से हम खुदावन के पास सीधे नहीं जा So सकते। what happens? We go through a name. हम उसके नाम के द्वारा जाते हैं। We go through a name who's already there beside the Father. जो आसमानी बाप ने, खुदावन ने हमें नाम दिया, हम उस नाम के द्वारा उसके पास जाते हैं। Bible says He takes our prayer and offer before the Father. कलाम में लिखा है यीशु मसीह हमारी दुआओं को लेके बाप के पास When जाते we हैं। pray in the name of Jesus, जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, it's like Jesus Himself taking our prayer and presenting before the Father. ऐसा समझिए कि यीशु मसीह खुद हमारी प्रार्थना, हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजा को लेके आसमानी बाप के पास जाता है। And Bible says that God always listens to Jesus. और कलाम में लिखा है कि जो बाप है, जो खुदावन है, वो अपने बेटी जो यीशु मसीह उसकी उनकी बातों को सुनता है। आपको याद है एक बार प्रभु यीशु मसीह एक फ्यूनरल में गए। You remember when Jesus Christ went to a funeral? You know, बहुत बार लोग फ्यूनरल में जाते हैं तो और ना भी चाहे तो फिर भी उनको सैड सा चेहरा बनाना पड़ता है। A lot of times people go into the funeral and sometimes they have to pretend like they are sad. अमेरिका में तो बहुत ही अजीब सा सिस्टम है, आपको सूट पहन के जाना पड़ता है। And over here in America is a weird, different system where people have to dress up. ईस्टर्न सिस्टम, इंडियन सिस्टम में आपको बड़ा गोमी से चेहरा बना के जाना पड़ता है, चाहे कि आपको पता भी ना हो डेथ किसकी है। और जो दूसरी everywhere else you have to go with a gloomy face, with a sad face in the presence. One day Jesus went to a funeral. और एक दिन यीशु मसीह funeral में गए और वो इंसान 3 दिन से ज्यादा हो चुका था, मर चुका था और एक कब्र में एक गुफा टाइप की कब्र में उसे बंद करके रखा था। and there was a person who had died for almost 3 days and Jesus Christ went to the tomb. और उसके अंदर से इतनी दुर्गंध आ रही थी, वो इतने दिन हो चुके थे उससे मरे हुए। And it was really smelling. और सब लोग रो रहे थे, उसकी फैमिली भी बोल रही थी कि जीसस आप पहले आ जाते तो शायद कुछ चांस था बचने का, अब तो उसके पास इतनी सी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, कोई उसके पास नहीं जा रहा। And everybody said that it's really smelling and stinky, and only if you would have come over here 3 days ago, 3 days before, maybe you would have done something. कोई और बाबा होता तो बोलता बच्चा तो उसकी कुदरत है, ये फिनिश हो गया, तुम क्या है आराम से घर चले जाओ। If it was somebody else, some other religious person, he would have said, it's already finished, that person is gone, just pray for him. इसलिए Jesus is so different from all other gods and gods. That's why Jesus Christ is totally different from all the other gods. अपनी जिंदगी के दौरान जब कभी यीशु किसी से मिले हैं, मुर्दा से उसे जिंदा करके ही छोड़ा। Anytime Jesus Christ had an encounter with a dead person, he had given him life. और उस कब्र में और उस सेमेट्री में जाके प्रभु यीशु ऐसे कहते हैं। And when Jesus Christ reached there, he said, ऐसे कहते हैं, महाकलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर करी और कहा, पिता जैसे तू हमेशा मेरी सुनता है,
कि ऐसा कर कि तेरे नाम को जलाल करे और ये लोग ईमान लाए। Jesus Christ, as it is written in the book, he went and he lifted up his eyes towards the sky and said, Father, as you have listened to my prayers in the past and answered me, today also give life to this person so that your name shall be glorified. ध्यान दे वहां पर यीशु एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पिता तुम आप हमेशा सुनते हैं। Here you see Jesus Christ says one thing, that God, Father, you always listen to me. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी आप यीशु के नाम से दुआ करते हैं, बाइबल कहती है कि पिता यीशु के नाम की हमेशा सुनता है। The Bible teaches us that whenever you pray in the name of Jesus, God always listens to you. It's His joy when we pray in the name of Jesus. उसे खुशी होती है जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। God is glorified when we pray in the name of Jesus Christ. खुदा को जलाल मिलता है जब हम यीशु मसीह के नाम से In दुआ fact, करते हैं। Jesus told His disciples in the book of Mark chapter 16 verse 16 said that in my name you shall cast out demons. मरकुस 6:16 में लिखा है कि मेरे नाम से तुम बदबुओं को निकालोगे। In my name you shall speak in different tongues. मेरे नाम से तुम अन्य भाषा में बोलोगे। In my name you shall lay hands on the sick and sick shall recover. मेरे नाम से जो बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रखोगे और वो शिफा पाएंगे। कोई नाम अच्छा नाम है जिस नाम से हमें चंगाई मिलती है, हमारी जिंदगी चेंज होती है, हमारी जुबानें बदल जाती है, हमारी पुरानी बुरी बातें खत्म हो जाती है, नई चीजें शुरू होती है। वो नाम लेने का फायदा है, बाकी नाम लेने का क्या फायदा कि नाम जपी जाओ और काम कुछ हो ही ना। What good is it if we take a name and nothing happens? We benefit by the name of Jesus Christ because whenever we take and do something by the name of Jesus Christ, we get result, we get benefit. यीशु ने कहा है, जो लोग मेरा नाम लेंगे ये उनके अंदर चिन्ह होंगे। Jesus Christ says, people who take my name, these signs will be found in them. एक तो चिन्ह उनके अंदर ये होगा कि वो दुआ करेंगे। One sign will be that they will be prayerful. They'll pray. वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार ठीक होंगे। They will lay their hands on sick. कोई बुरी बात उन पर असर नहीं करेगी। No negative thoughts or any negative thing will affect them. जादू टोना उन पर असर नहीं करेगा। No magic or voodoo will work on them. कोई ऐसी बात उन पर असर कर नहीं सकती None of these negative things will affect them क्योंकि उन्होंने यीशु का नाम लिया है। because they have taken the name of Jesus Christ. कोई लोग इतने धर्मी होते हैं, Some people are so religious. इतने रिलीजियस होते हैं, They are so religious. इतनी पाठ पूजा करते हैं, They pray and they do all the ritual इतनी things. पाठ पूजा करते हैं, They do so many वो of these डरते things. रहते हैं कि कभी इसका धर्म मुझे भ्रष्ट न कर दे, And they're scared that something will destroy them. कभी कि वो चीज मुझे भ्रष्ट न कर दे, That this thing will destroy me. ये That मेरे thing will धर्म को ये कुछ अनुचित न कर दे। that this thing will make me unrighteous or बिल्ली काट दी उनका रास्ता तो उनका सारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। that if a cat walks through across the street, कुछ भी ऐसा सुपरस्टिशन होता तो उनका सारा पाठ पूजा एक साइड में हो जाता है। they believe all these superstitions and when it happens they're scared. यीशु कहता है अगर आप मेरा नाम लेते हैं, Jesus Christ says, when you take my name, कोई बुरी चीज भी आपको पिला दे, if somebody gives you poison or something bad, कोई deadly poisonous things भी आपको पिला दे, nothing is going to affect you. if you believe in Jesus Christ and somebody by mistake gives you any poisonous thing or any food, nothing will happen to you. Because the name of Jesus is so powerful. क्योंकि यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थी है। He has given that name for us to be used. उसने खुदावंद ने हमें नाम दिया है ताकि उस नाम को इस्तेमाल करें। Those who call upon the name of the Lord shall be saved. जो उसके नाम को पुकारेंगे वो जरूरी बचाए जाएंगे। Those who call upon the name of Jesus shall be saved. जो उसके यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो जरूरी बचाए जाएंगे। Acts chapter 5 verse 41. हमारा उसका 5वां बाब 40 आया 5 verse 41. 5वां बाब Wonderful verse we will read from the Bible. 5:41, Acts chapter 5 verse 41. कोई भी जन जल्दी से पढ़ दीजिए। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। हाँ, किस बात से बहुत खुश हो गए? लिखा है, disciples were very joyful. They were so full of zeal. They were so full of laughter and left the synagogue, left that meeting, and they went home. यहाँ पे लिखा है कि जो शागिर्द थे वो बहुत ज़्यादा खुशी से भरे हुए थे और वो इस जगह से चले गए वहाँ से। क्यों गए? क्यों खुश थे? पढ़े जाए। क्योंकि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य हैं। वो
यीशु का नाम लिया है, इसलिए लोगों ने हमें क्या करा, बेइज्जती करी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि लोग वो नाम हमारे अंदर में क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। Because they were taking the name of Jesus Christ and people were getting offended and upset, they were happy, they were rejoicing. Because of the name of Jesus. क्यों? यीशु मसीह के नाम की वजह वो से। बेइज्जती होने की, जब उनकी बेइज्जती हो रही उस नाम से, वो बोले वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। When they were insulted in front of all people, they were happy because the name of Jesus Christ was being glorified. Because they know that along with their name, some other name is being added. क्योंकि उन्हें पता था उनके नाम के साथ दूसरा नाम भी जुड़ा हुआ है। Or that's why they are so excited इसी about it. वजह से वो इतने खुश थे। Acts chapter 9 verse 27 पढ़िएगा। हमारी किताब उसका 9वां बाब और 27 में है। 9 verse 27 9 बाब की 27 में है। पढ़िए जल्दी से। परंतु बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किसी रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे लिया से यीशु मसीह का नाम प्रचार। दमिश्क में इन्होंने यीशु के नाम से बहुत धड़क प्रचार किया है। It is a quality, one of the quality of all in those days was that he could preach in the name of Jesus so boldly. ये पौलुस में खूबी थी कि उन दिनों में वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार बड़ी दिलेरी के साथ करता था। So first time when Barnabas took to the disciples, Barnabas took Paul the disciple, he's telling the quality all that he has in his life. He's telling this man is so powerful, so bold, so courageous that he could do anything for the name of the Jesus Christ. और यहाँ पे बरनबास जब पौलुस को लेके जाता है शागिर्दों के पास, वो शागिर्दों को बताता है कि पौलुस किस तरीके से, किस दिलेरी के साथ यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है। आज हमारे लिए नाम कैसे फायदेमंद हो सकता है? How is the name of Jesus Christ today beneficial? याकूब की पत्री में से पढ़िएगा 5:14। The letter of James. The letter of James chapter 5 पढ़िएगा और उसकी 14 chapter 5 verse 14। कोई भी नहीं। यदि तुममें से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर एक मन कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप नहीं किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। Thank you। क्या लिखा है? If anybody is sick among you, अगर तुम्हें से कोई बीमार है, call the elders of the church, जो कलीसिया के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, and let them come and anoint the sick with the oil और जो बीमार हैं उनको उनके ऊपर दुआ करें, in the name तेल लगा के यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। and क्या होगा? The sick will be healed। और जो बीमार है वो शिफा पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को, अपने संतों को, अपने अगुओं को जितने हैं उनको ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो यीशु का नाम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Jesus Christ has given this power, this authority to everybody that believes in Jesus Christ. They can use His name anywhere, anytime. ये नाम इमिग्रेशन प्रॉब्लम होता भी यूज हो सकता है। If you have an immigration problem, you can take His name and pray for it. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है तभी दिस नेम कैन वर्क। If you have an employment problem, you don't have a job, you can pray in the name of Jesus. फैमिली प्रॉब्लम दिस नेम विल वर्क लाइक दैट। If you have any family problems, you can pray in the name of Jesus. Any problem that we face in the life, कोई भी परेशानी जिंदगी में आपके हो, God has given this authority to all those who believe in Jesus Christ that they can use this name and eliminate the problem. ये हमें खुदा ने ये हमें नाम दिया ताकि इस नाम से हम इन सब बातों के लिए दुआ कर सकें। And there is one condition to use that name. लेकिन एक कंडीशन है उस You नाम have to की, use by faith. ईमान के साथ आपको उसका नाम आपको इस्तेमाल करना है। You do not use the name of the Lord in vain. लिफादा ऐसे ही उसका नाम ना ले, ईमान के साथ दुआ करें उसका उसका नाम से। नाम जो है स्ट्रॉन्ग पावर की तरह है। Because His name is full of power. वो एक बड़े बुर्ज के समान है। He's like a strong, बड़ी सामर्थ उस नाम में।
There's power in the name of Jesus Christ. वर्षिप में बताया जा रहा था जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे सुंदर फाटक के पास, उनके पास सिर्फ वो नाम था, उस नाम के कारण से वो आदमी जो लंगड़ा पैदा हुआ था कई सालों से उसी समय वो ठीक हो गया। You heard before when we talked about John and Peter when they went to the beautiful gate and they told that person that they, by the name of Jesus Christ, that you shall be healed. आज भी उस नाम से खुदावन हमारे बीच में अद्भुत काम करना चाहता है। Even today, in this day, the Lord works miracles. ऐसे रिलीजियस प्रे नहीं करना है, You don't have to pray just because of religion, रूटीन की तरह प्रेयर नहीं करना है, not because you have a routine or a tradition. बाय फेथ की तरह हमें प्रेयर करना है, ईमान के साथ हमें यीशु मसीह के नाम से दुआ करनी है. रेस्पेक्ट के साथ ये नाम यूज करना है, Reverence. और इस नाम की वसीला से हमें साल्वेशन मिलती है, Because of this name, we receive salvation. हीलिंग, We receive Freedom. healing, आंसू जो छुटकारा, हमारे आंसू दुआओं का जवाब. कुछ भी हम फेस कर रहे हैं आज। कोई भी परेशानी, कोई भी बात इस दुनिया की हम हमारे सामने है. Jesus said, all that heavy laden and burden, come unto me, I'll give you rest. यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. We don't have to carry the burden that we are carrying. हमें उस बोझ को लेके चलने की जरूरत नहीं है. Jesus will take our burden. यीशु मसीह आपके बोझ को देने के The लिए तैयार है. moment by faith we give to Him, जिस वक्त आप ईमान के साथ अपना बोझ यीशु मसीह को देते हैं, He takes our burden and set us free. वो हमारे बोझ को अपने ऊपर लेता है और हमें हमारी परेशानियों I से cannot छुटकारा give देता है. you enough testimony. There are so many testimony, one after another. I can keep on sharing how the Lord has been doing wonderful things through His name. मैं अगर शुरू करूं तो शायद वक्त ना हो. इतनी बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो यीशु मसीह के नाम को चला देती हैं. कईयों की प्रार्थना खुदावन ने सुनी है, Many prayers has been answered. बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिला है, People have been healed. बिगड़ी जो बन गई उसके नाम से, Whatever was not working, it was fixed. But name of Jesus. इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स खुदावन ने सॉल्व करी हैं. People had immigration problem and The Lord is doing wonderful things. जो खुदावन है वो बड़े-बड़े काम कर रहे Even हैं. today, by faith, if you have any prayer request, अगर आज भी आपके पास अगर कोई दरख्वास्त है तो ईमान let's के साथ all stand up and we'll take that prayer to the presence of the Lord.